is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 k q upon r square. And on the basis of that, we have discussed 5 notes. One, electric intensity is inversely proportional to square of the distance between the charge and given point. That is, E is directly proportional to 1 upon r square. And if you are changing the medium, obviously electric intensity, because of a same charge and at same distance, it will be different because dielectric constant for different medium, it will be different. So again, it is E is inversely proportional to K. And the second one is, if it is positive charge, the direction of electric intensity is away from the charge. And if it is negative charge, then the direction of electric intensity is towards the charge. Towards the charge, right? And fourth one, if you have got uniform electric field, then in that field, everywhere, the magnitude and direction of electric intensity is going to be the same. And it is represented by set of parallel lines, and the distance between the two lines should be same everywhere. And at last, we have got non-uniform electric field. So obviously here, the magnitude and direction of electric intensity is different at different points. Different. Right. Yes. And obviously here the direction will be random. So we have discussed up to this much. Today, we will discuss the practical method of calculating, finding electric field intensity. So we will find a different formula for electric intensity, which will be used practically to find the value of electric intensity, right? So for that, first we will consider pair of parallel plates, right? So we'll consider two identical pair of parallel plates, and these plates, they are separated by a distance small d. So consider a pair of parallel plates, pair of parallel plates separated by a distance that is small d. So distance है इसके लिए मैं d ले रहा हूं, as shown in figure. Right? तो obviously हम लोग को दो plates लेना पड़ेगा. तो हम लोग दो plates consider करेंगे. So we'll have two plates. Identical है. ये plate A है. This is plate B. And आपस में जो distance है, it is going to be d. So they are not in contact. So obviously इनका बीच में distance d है. अभी क्या करेंगे? इसका across एक cell connect करेंगे जिसका potential difference v है. तो obviously cell ये दोनों plate को charge करेगा. You got a cell with the potential difference v. Right? So a potential difference, a PD, a potential difference. तो मैंने ले लिया उसको v. V is applied across the plate. तो दोनों प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है. इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द डायग्राम. जैसे कनेक्ट किया ना बच्चा, तो ये मेटल्स है, ये मेटल से इलेक्ट्रॉन्स ये डायरेक्शन में जाएगा, राइट? यस. इलेक्ट्रॉन्स ये डायरेक्शन में रहेगा. सो फॉर अ चेंज, इफ आई वांट टू चार्ज A to be positive, राइट? करंट ऐसा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसा जाता है. उल्टा बोल रहा हूँ. सो चल, तो ऐसे ही कनेक्ट करना पड़ेगा बच्चा. ऐसा कनेक्ट किया तो करंट ऐसा जाता है, राइट? करंट कैसे जाता है बच्चा? पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, राइट?
पॉजिटिव तो इधर का जो इलेक्ट्रॉन है, ए का जो इलेक्ट्रॉन है इधर से इधर आएगा और इसके ऊपर एक्यूमुलेट होता जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर आया तो अल्टीमेटली इधर एक प्रोटॉन बढ़ेगा, और एक इलेक्ट्रॉन इधर आया तो अल्टीमेटली इधर प्रोटॉन बढ़ेगा। सो इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होते जाएगा एंड ऑफ कोर्स उधर तक होगा जिधर तक ये मेटल प्लेट उसको होल्ड कर सकता है, क्योंकि हर एक प्लेट का चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होता है, राइट। तो अज्यूम करो इसका जो होल्डिंग कैपेसिटी Q है, तो उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, राइट। एंड उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उधर गया तो इधर प्रोटॉन बढ़ेगा एंड उतना ही मैग्नीट्यूड में बढ़ेगा जितना इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है। तो आई अज्यूम दैट हियर द चार्ज इज प्लस Q एंड हियर द चार्ज इज माइनस Q। तो दोनों प्लेट चार्ज हुआ, राइट। तो ये प्लस Q हुआ, ये माइनस Q हुआ। अभी आपको पता है जैसे चार्ज होता है तो ये प्लेट का बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। क्या होगा बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा एंड उसका डायरेक्शन सबको पता है, इट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। पॉजिटिव टू नेगेटिव। So this will be the direction of electric field and I will take this electric field to be E bar. इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E बार कंसिडर किया। इतना समझा बच्चा सबको? यस यस ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड I will consider it as E is, what is the direction of electric field बच्चा? पॉजिटिव Positive टू to नेगेटिव। Tell me in terms of plate A and B. A to B. ए टू बी। AB. So yes, the electric field is directed from plate A to plate B. तो इधर से क्लियर है? यस Yes. फाइन। अभी मैंने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर बच्चा मैं एक चार्ज रखूंगा, वो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है दैट इज Q है। इधर एक मैंने चार्ज रखा Q। बताओ जैसे मैं चार्ज को रखता हूं तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फोर्स एक्सर्ट करेगा एंड ये फोर्स का डायरेक्शन ऑब्वियसली ये डायरेक्शन में रहेगा, द फोर्स। यू एग्री विद मी? यस 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 अच्छा चार्ज कौन सा है बच्चा? पॉजिटिव है ना वो? Positive. पॉजिटिव। तो चार्ज यस पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव रिपल करेगा उसको, ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा। बच्चा इधर तक क्लियर है? यस यस इसका मतलब ए फोर्स का वजह से द चार्ज विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपको प्लेट ए से प्लेट बी पे चार्ज को लेके जाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद लेके जाएगा। यू एग्री विद मी? यस बट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट लेके जाना है, अगेंस्ट, देन आपको वर्क करना पड़ेगा। यू हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चा समझ में आ रहा है? यस यस मतलब चार्ज को ऐसा लेके जा रहे हो तो आपको वर्क करना नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद लेके जाएगा। बट चार्ज को ऐसा लेके जाना पड़ेगा तो ऑब्वियसली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड उसको जाने नहीं देता है। मैंने आपको लास्ट हमेशा बोलता हूं कि सपोज चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में जाता है। चार्ज पॉजिटिव है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट लेके जाना है तो आपको उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, राइट। I mean, if plus Q is moved against the electric field, you have to do some work. Yes or no? यस यस तो मैं क्या करूंगा, ये चार्ज Q है उसको B to A लेके जाऊंगा। किधर लेके जाऊंगा बच्चा? B to बी टू ए। If plus Q charge is moved from plate B to plate A against the direction of electric field
then work done is given by. बच्चा मेरे को बताओ, सपोज मैं बी टू ए जाता हूं, चार्ज कितना डिस्टेंस कवर करता है बच्चा? कितना डिस्टेंस कवर करता है? distance. D. 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 So don't you think work done will be force into displacement? Into D. Displacement. क्योंकि फोर्स इधर ये डायरेक्शन में है, तो आपको फोर्स वो डायरेक्शन में देना पड़ेगा, उसको मूव करना है तो अल्टीमेटली उसका वैल्यू बनेगा एफ डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ into D, where D is the distance between the two plates. Everybody followed up to this much? Yes. 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 By definition, electric या potential difference is given by. Potential difference is given by. But what is the formula for potential difference? V is equal to W upon Q. You remember? Yes. Work done upon charge. Charge. इधर work done है बच्चा, तो अल्टीमेटली मेरे को भी वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू V इंटू क्यू. बराबर है? Yes. Yes. बच्चा दोनों किसके इक्वेशन है? वर्क डन का है, तो अल्टीमेटली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप उसको इक्वेट करेंगे. क्या करेंगे बच्चा? इक्वेट. Equate. क्या मिलेगा बताओ? FD equal equal to VQ. Equal to VQ. वेरी गुड. वी क्यू. मेरे को क्या चाहिए बच्चा? ई चाहिए ना, Yes. तो मैं Q को ओ साइड में लेके जा रहा हूं. Q को ओ साइड, तो F अपॉन Q विल बी इक्वल टू V अपॉन D. बराबर है बच्चा? Yes. Yes. Now tell me what is F upon Q? Intensity of electricity. खत्म बात. So E is equal to V by D बच्चा. So don't you think दो प्लेट का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता है और उनका बीच में डिस्टेंस पता है, तो आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अंदर कितना है वो पता चल जाएगा. Yes. Yes. बच्चा समझा? Yes. 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 ठीक है बच्चा, लिखो. सर हम्म. सर वो जो डायग्राम में है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स है ना नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, तो ए में नेगेटिव होना चाहिए था और बी में पॉजिटिव होना चाहिए था ना. बच्चा करंट का डायरेक्शन आप किधर रहेगा वो बताओ. ऐसा रहेगा पॉजिटिव टू करंट का नेगेटिव. डायरेक्शन? ऐसा सर रहेगा ना पॉजिटिव बच्चा? टू नेगेटिव रहेगा. हाँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब अंदर तो नहीं रहेगा ना, बाहर से रहेगा ना बच्चा. यस यस. हाँ अभी समझा. करंट ऐसा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स उल्टा Yes. आएगा ना बच्चा. यस यस. ठीक है. यस. सर डायग्राम एक बार समझा ना, डायग्राम नहीं समझा अच्छे से.
बच्चा मेरे को ये बताओ, डायग्राम में आपको क्या नहीं समझ रहा है वो तो बताओ। पॉजिटिव, उधर ए में पॉजिटिव कैसा है, बी में नेगेटिव। बच्चे मेरे को ये बताओ कि जैसे ही सेल इधर कनेक्ट किया तो क्या होता है, इधर को जो इलेक्ट्रॉन्स है इधर से इधर आ जाता है, राइट? तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा तो यस इधर से उल्टा करंट का डायरेक्शन, मतलब रिवर्स पे करंट फ्लो होता है, ठीक है? अभी जैसे जैसे इधर इलेक्ट्रॉन जमा होते यस जाता है वैसे इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा। जैसे ये कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो जमा हो सकता है वो हो गया, देन करंट जीरो होगा, करंट विल बिकम जीरो एंड ए Yes. प्लेट चार्ज हुआ रहेगा, चार्ज। यस समझा? यस मतलब एक बार ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, जब ये बोलेगा Yes. प्लेट भाई अभी नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए, मतलब मैं एक्यूमुलेट नहीं कर सकता, तो सर्किट में करंट क्या होगा, जीरो होगा। जीरो हो अभी जाएगा। करंट इधर फ्लो नहीं होगा और कैपेसिटर चार्ज होगा, यस बराबर है? यस Done, sir. ओके। बच्चे इधर ध्यान दो सब लोग। somebody is asking सर प्लस क्यू चार्ज तो प्लेट ए में है, तो बी में ए कैसा मूव हो रहा है, बी टू ए कैसा मूव हो रहा है? बच्चे इधर देखो, इधर ये दोनों प्लेट्स है ना, दे आर नॉट इन कांटेक्ट, ए और बी के बीच में कुछ करंट नहीं जा रहा है, ठीक है? अभी क्या हो रहा है, जैसे आप सेल कनेक्ट करते हो ना, सेल कनेक्ट करते हो तो ये जो मेटल प्लेट्स में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है, मतलब ऐसा मेटल्स लिया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जैसे सेल कनेक्ट करते हैं तो बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ये जो प्लेट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव होगा। आप पहले सपोज सेल कनेक्ट नहीं किया था तो इधर चार्ज क्या था बच्चा, न्यूट्रल। इधर क्या चार्ज है, न्यूट्रल, दोनों न्यूट्रल था। अभी सेल कनेक्ट करते हैं कि सपोज एक इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इधर चार्ज बनेगा माइनस सी, इधर चार्ज बनेगा प्लस सी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा तो इधर एक प्रोटॉन बढ़ेगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। अभी मैं बोल रहा कि इसमें इतना इलेक्ट्रॉन्स आया है तो इधर चार्ज क्या होगा, माइनस क्यू आया, तो इधर माइनस क्यू, तो डेफिनेटली वो साइड पे चार्ज कितना होना चाहिए बच्चा, प्लस क्यू होना चाहिए, है ना? एंड एक बार इधर चार्ज माइनस क्यू हुआ और मैं कंडक्टर ने बोल दिया कि भाई मैं इतना ही चार्ज होल्ड कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, तो अल्टीमेटली इधर से इलेक्ट्रॉन आना बंद हो जाएगा। इधर इधर से इलेक्ट्रॉन आना बंद हो गया तो सर्किट में करंट भी क्या होगा, जीरो होगा। इसका सर मतलब तुम्हारा दोनों पोटेंशियल मेटल डिफरेंस की प्लेट क्या वजह होगा, से हुआ ना वो। एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हुआ, नहीं तो चार्ज ऐसे ही नहीं जाता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। आई थिंक हेमांगी, इज इट क्लियर बच्चा? हाँ, ओके।
आई होप इट इज डन। कोई है जिसका नहीं हुआ है? कोई है जिसका नहीं हुआ है? ठीक है, सो इफ इट इज डन तो मैं रब कर रहा हूं। फाइन बच्चे, एक बार देख लो फिर से। दो मेटल प्लेट लिया बच्चे, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। इसका मतलब जिसमें इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। ठीक है, जैसे सेल कनेक्ट किया हम लोग ने तो क्या होगा, ये जो सेल का वजह से करंट ऐसा फ्लो होना चाहिए, लाइक दिस। करंट इधर से ऐसा जाना चाहिए। अभी करंट ऐसा कब जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन उल्टा फ्लो होगा। इसका मतलब ये मेटल क्या करेगा, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इट विल रिलीज द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा एंड इधर एक्यूमुलेट होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आया तो अल्टीमेटली इधर एक प्रोटॉन बढ़ेगा, क्योंकि इधर जितने इलेक्ट्रॉन थे उतना ही प्रोटॉन था। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इधर पॉजिटिव बढ़ेगा। सो दिस विल बिकम नेगेटिव एंड दिस विल बिकम पॉजिटिव, राइट। एंड और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, एंड ये चलते जाएगा। नेगेटिव इधर आते जाएगा एंड इधर पॉजिटिव बढ़ते जाएगा। कब तक आएगा बच्चा, क्योंकि हर एक मेटल का इतना ही एक होल्डिंग कैपेसिटी होता है, मतलब इतना ही चार्ज होल्ड कर सकता है। सपोज इसका होल्डिंग कैपेसिटी क्यू है, तो जब चार्ज इसका माइनस क्यू होता है तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आना बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर बंद हो गया तो करंट सर्किट में क्या होगा बच्चा, जीरो। तो इधर चार्ज होगा प्लस क्यू। तो इसका मतलब कैपेसिटर, आई मीन ये दोनों प्लेट क्या हो गया, चार्ज हो गया। जैसे ही इधर नेगेटिव पॉजिटिव हुआ तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है। बच्चा अभी तो और क्लियर हुआ होगा? Yes, sir. Yes. ठीक है, next it is going to be electric lines of force. Electric lines of force. बच्चों this is same as magnetic lines of force. कोई डिफाइन कर सकता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को, जो आपने 10th में डिफाइन किया होगा? कोई डिफाइन कर सकता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को? कोई नहीं, डिफाइन नहीं किया आपने 10th में? आपने ऑब्वियसली ऐसा कुछ पढ़ा ही होगा। तो आप एक मैग्नेट लेंगे एंड मैग्नेट को मेरा हाथ दिख रहा है, ऑब्वियसली इधर रखूंगा मैं। तो मैग्नेट इज प्लेस्ड हियर, देन उसको ऊपर स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल करेंगे। तो ये जो आयरन पीसेस ऑफ आयरन फाइलिंग जो है तो ऐसा एक्यूमुलेट होगा एक लाइन में। Yes. उसको ही हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। व्हाट वी कॉल मैग्नेटिक Magnetic लाइंस lines ऑफ of फोर्स। force. हाँ, तो हम लोग ये बोलते हैं कि इट इज अ इमेजिनरी कर्व drawn in such a manner, tangent drawn to that curve will give the direction of strength of magnetic field या magnetic induction का डायरेक्शन देता है। मतलब वो कर्व पे आप टेंजेंट बनाएंगे तो आपको वो पॉइंट का, कर्व में वो जो पॉइंट में आपने टेंजेंट बनाया उसका मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन देता है। पता है आपको? ये स्टेटमेंट सुना है आपने? बच्चे आपने ये स्टेटमेंट सुना है? No. No. नहीं सुना है? तो आपने कैसे डिफाइन किया 10th में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स? The imaginary curve drawn in such a manner, tangent drawn to the curve, it gives the direction of direction of strength of magnetic field.
या मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो इन केस नहीं पढ़ा है तो ऑब्वियसली 11th में तो फिर से पढ़ेंगे उसको आप। बट इधर एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया मैंने, एक नेगेटिव चार्ज कंसिडर किया, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव चार्ज का। एंड इनका जो अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड को, जैसा मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो बाय डेफिनेशन बच्चा जैसे मैं लिखूंगा आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता क्या है। देखो सिंपल है, द फ्री path followed by unit positive charge। तो मैंने बोला था कि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हो या टेस्ट चार्ज भी लिख सकते हो, तो अल्टीमेटली बात तो वही है। एंड यू नो दैट टेस्ट चार्ज इट इज ए पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज वेरी स्मॉल, सो दैट वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये चार्ज का उसको इफेक्ट नहीं करता है, राइट। तो आप कौन सा एक लिखो, एक तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखो, नहीं तो टेस्ट चार्ज लिखो। तो आपका टेक्स्ट बुक में तो यूनिट चार्ज लिखा है, so I will go with that. So the free path followed by unit charge placed in electric field is called electric lines of force। Lines of force मतलब आप एक यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, वो जो पाथ फॉलो करेगा वही रहेगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द फ्री पाथ फॉलोड बाय यूनिट चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो बच्चा इधर देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इधर मैंने एक यूनिट चार्ज रखा, दैट इज Q0। बच्चा ये Q0 ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, टुवर्ड्स आएगा कि दूर जाएगा? रिपेल होगा, रिपेल अवे फ्रॉम द। बच्चा वो जिधर जाएगा वो वही लाइंस ऑफ फोर्स होगा, जिधर जाएगा वो लाइंस ऑफ फोर्स रहेगा। कुछ समझ में आया? तो मैं इधर रखूंगा तो टुवर्ड्स जाएगा कि दूर जाएगा बच्चा? तो अभी मेरे को बताओ, किधर भी मैं रखूंगा तो ऑब्वियसली ये दूर जाता है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा ऑब्वियसली सब जगह अवे रहेगा। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर विच चार्ज बच्चा? पॉजिटिव। इज इट क्लियर? Yes. ऑन द अदर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज है, तो इधर रखा मैंने चार्ज को, बच्चा किधर जाएगा? टुवर्ड्स से किधर? वेरी गुड। इधर किधर भी रखूंगा तो किधर जाएगा? राइट, ऐसा रहेगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर नेगेटिव चार्ज। क्लियर अप टू दिस मच? Yes, sir. Yes, एनी sir. कंफ्यूजन? No, sir. ये इजीएस्ट डेफिनेशन है। अदरवाइज इसको हम लोग ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, और it is defined as imaginary curve drawn in such a manner tangent at every point या any point gives the direction of electric intensity at that point। मतलब एक imaginary curve है, so an imaginary curve drawn in such a manner या such a way, रिपीट, an imaginary curve। बच्चा किसी का तो माइक अनम्यूट है, इसको म्यूट कर लो। It's an imaginary curve drawn in such a way that tangent
tangent drawn to that curve gives the direction of electric intensity at that point. मतलब वो पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन देगा. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. An imaginary curve drawn in such a way that tangent drawn to that curve gives direction of electric intensity at that point. For example, एक पॉजिटिव चार्ज है एंड एक नेगेटिव चार्ज है, एंड आपको पता है यूनिट चार्ज इधर रखा तो ऑब्वियसली इधर से रिपल होगा और इधर अट्रैक्ट होगा, तो पाथ ऐसा कुछ जाएगा, ऐसा रहेगा पाथ, Yes. राइट. सो ऑब्वियसली ये लाइंस ऑफ फोर्स होगा. अभी इसमें मैंने दो पॉइंट सेलेक्ट किया बच्चा, एक इधर सेलेक्ट किया एंड एक इधर सेलेक्ट किया. तो आपको क्या करना है, एक इधर टैंजेंट बनाना है, वो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन में, क्योंकि टैंजेंट ऊपर भी बन सकता है नीचे भी बन सकता है. आपको बनाना है ऊपर, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन में बनाना है. तो आप इधर एक टैंजेंट बनाएंगे, so this will give you the direction of electric intensity at this point. So आपको इधर चाहिए तो again in the direction आपको tangent बनाना है. Now this tangent will give you the direction of electric intensity at this point. So जिधर चाहिए उधर एक tangent बनाओ, वो पॉइंट पे in the direction of electric lines of force, ये आपको देगा electric lines of force. बच्चा सबको समझ में आया? Yes. Yes. सर ये सिर्फ Yes. पॉजिटिव चार्ज के लिए भी नहीं होगा ना? नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव के लिए भी है, नेगेटिव के लिए भी है, दोनों के तो लिए भी है ना. पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव से वो टेंजेंट बाहर कैसे आता होगा? है. कौन सा पॉजिटिव के लिए? अभी इधर तो बच्चा मेरे को टैंजेंट वही डायरेक्शन में बनेगा ना, यस. इधर अंदर बनेगा, मतलब अल्टीमेटली इंटेंसिटी इधर कंफ्यूजन नहीं, इधर इन है इधर आउट है, बट कर्व रहेगा तो उधर टैंजेंट बनाना पड़ेगा. यस. बराबर ना. इफ द डायरेक्शन, इफ द लाइन इज रिपल होगा ना बच्चा, ये प्लस और ये प्लस लाइन से ऐसा जाता है ना बच्चा, तो अल्टीमेटली इधर बनेगा टैंजेंट ऐसा. Yes. बराबर है. ये आगे देखेंगे हम लोग, डोंट वरी. ठीक है, ये कंप्लीट करो. यस. Done, sir. ओके.
फाइन, मैं स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ठीक से देखो। द फ्री पाथ followed by so here we are supposed to write followed by a unit charge, followed by a unit charge placed in electric field is called electric lines of force। ये बनेगा फर्स्ट स्टेटमेंट। दोनों में एक कौन सा तो एक लिखना है। सेकंड, electric lines of force is an imaginary curve drawn in such a way that tangent drawn to that curve gives the direction of electric intensity at that point। So I hope सबका हो गया है। कोई है जिसका नहीं हुआ है? स्क्रीन ब्लर है सर। स्क्रीन ब्लर ब्लर है सर। नहीं, अभी भी ब्लर है सर। अभी क्लियर है सर। ओके। So fine then, so मैं रब कर रहा हूं इसको। Anyway, next it is going to be the properties, yeah, characteristics of electric lines of force। Properties और characteristics of electric lines of force। फर्स्ट वन, डायग्राम में फर्स्ट में क्लियर पता है हम लोग को, ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से बाहर आता है। तो आई कैन से दे ओरिजिनेट from positive charge, they originate from positive charge and terminate, बराबर ना बच्चा, टर्मिनेट लिख सकता हूं ना मैं, एट नेगेटिव चार्ज। आप ये भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, एक कन्वर्ज होना, एक डाइवर्ज होना। तो डाइवर्स तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज से होता है और कन्वर्ज नेगेटिव चार्ज में होता है। बच्चा फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। बच्चा फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? यस यस सर। ठीक है। यस सर। सेकंड, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो सबको पता है क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी इंटरसेक्ट नहीं होता है। तो दे विल नेवर
intersect each other. Why they will never intersect each other? बच्चा intersect हुआ, in case intersect हुआ, then तकलीफ क्या है? जो पॉइंट में इंटरसेक्शन होता है वो पॉइंट में इसको रेफरेंस पे ने टेंजेंट बनाया तो टेंजेंट इधर आता है, तो ई का डायरेक्शन ऐसा होगा। इसको रेफरेंस लिया तो ई का डायरेक्शन ऐसा होगा। तो इसको मतलब एक पॉइंट में दो डायरेक्शन आ जाएगा। एंड आपको पता है एक पॉइंट में दो डायरेक्शन कभी नहीं हो सकता। एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन एक ही हो सकता है, राइट? तो इसका वजह से दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट? तो क्लियर है पॉइंट? सेकंड वाला ठीक है। थर्ड वन, दे आर ऑलवेज perpendicular to the surface of charge conductor. सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर मतलब हमेशा कंडक्टर पे वो नॉर्मली अंदर जाएगा या नॉर्मली बाहर बाहर आएगा। फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है जो पॉजिटिवली चार्ज है और एक कंडक्टर है जो नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव से वो नॉर्मली बाहर आएगा और नेगेटिव से भी नॉर्मली अंदर जाएगा। इसका मतलब इधर भी एंगल 90 डिग्री होगा और इधर भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब हमेशा सरफेस का साथ एंगल कितना बनाएगा बच्चा? 90 डिग्री। ठीक है, वो मतलब ये चार्ज कंडक्टर है तो ऐसे ही अंदर जाएगा बच्चा को मतलब इधर से ऐसा नहीं जाएगा वो, राइट? इधर से ऐसा होके ऐसा जाएगा ताकि एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। इधर भी ऐसा होके ऐसा जाएगा तो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, राइट? क्लियर अप टू दिस मच? Yes. मतलब सरफेस का साथ एंगल कितना बनाएगा बच्चा? 90 डिग्री। ठीक है। सो थोड़ा तो ब्लर फोर्थ ब्लर वन, दिख रहा है। Yes, sir. Screen is blurred. अभी बच्चा सर अभी विजिबल है? विजिबल है ना? Yes, sir. Visible. यस। ठीक है, फाइन। सो 3 हो गया। फोर्थ वन, दे विल नेवर पास थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर में पास नहीं होता है, सो दे विल नेवर पास थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर में पास नहीं होगा, बट दे कैन पास थ्रू इंसुलेटर। थ्रू इंसुलेटर कंडक्टर के अंदर पास नहीं होता, इसके लिए कंडक्टर का अंदर ई का वैल्यू 0 होता है बच्चों, याद रखना। इफ इट इज कंडक्टर अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कंडक्टर का अंदर 0 होता है क्योंकि अंदर पास नहीं हो सकता। ठीक है, इंसुलेटर में पास होगा क्योंकि वो अलाउ करता है। आप ऐसा याद रखो, कंडक्टर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो इनफाइनेट है। तो इनफाइनेट है तो ऑब्वियसली वो पास होने नहीं देता है। एंड बाकी के लिए क्या होगा इंसुलेटर में लिए, फॉर एग्जांपल वाटर है उसका 80 है, लास्ट टाइम आप लोगों ने डिस्कस किया था। ग्लास का 25 है, बट मेटल का इंफिनिटी है। मेटल का इंफिनिटी, एंड इंफिनिटी मतलब बिल्कुल अलाउ नहीं करता है। इसके लिए 40 होगा। 40 होता तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी 0 होगा, राइट? सो ये क्लियर है बच्चा? फोर्थ पॉइंट, दे विल नेवर पास थ्रू कंडक्टर बट दे कैन पास थ्रू इंसुलेटर। इंसुलेटर को हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं।
क्लियर है फोर्थ पॉइंट? Yes. Yes. ठीक है, फिफ्थ वन, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, electric intensity is proportional to number of electric lines of force, number of electric lines of force per unit area. I repeat, magnitude of electric intensity is proportional to number of electric lines of force per unit area of the surface held perpendicular to the field. मुझे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। अभी अज्यूम करो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। तो आप क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को परपेंडिकुलर है कि एक प्लेन विजुअलाइज करो। तो दिस इज प्लेन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब ये प्लेन ऐसा होगा, राइट। अब ये प्लेन में आपको यूनिट एरिया कंसीडर करना है, यूनिट एरिया। फॉर एग्जांपल यूनिट एरिया सपोज इतना, तो ये इसका यूनिट एरिया। अब ये यूनिट एरिया में जितना लाइंस ऑफ फोर्स रहेगा दैट विल डिसाइड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इधर दो जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल और क्लोज आया तो ज्यादा और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ नजदीक आया तो यूनिट एरिया पे लाइंस ऑफ फोर्स और पास होगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा। बट इधर दो जा रहे हैं, अभी एक क्लोज आया तो 10 जाएगा, और क्लोज है तो 100 जाएगा। तो यूनिट एरिया में जितना लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आता है वो डिसाइड करता है कि इंटेंसिटी कितना है। कम पास होता है तो इंटेंसिटी कम है, ज्यादा पास होता है तो इंटेंसिटी ज्यादा है। बच्चे इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई कैन से सिक्स्थ वन, सपोज लाइंस ऑफ फोर्स एकदम नजदीक है तो स्ट्रेंथ इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा कि बच्चा कम रहेगा? ज्यादा। ऑब्वियसली ज्यादा। तो इफ दे आर क्राउडेड तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज मैक्सिमम होगा, राइट। if they are well separated, electric intensity is minimum. सेपरेशन ज्यादा है तो ये मिनिमम होगा, सेपरेशन कम है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा बच्चा? मैक्सिमम होगा। 6 पॉइंट क्लियर है बच्चा? सो इट इज बेस्ड ऑन दिस ओनली। बच्चा 6 पॉइंट क्लियर है? Yes. पक्का ना? कुछ कंफ्यूजन नहीं है, राइट? No. ठीक है। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है ना बच्चे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? Parallel line. और क्या स्पेसिंग क्या होना चाहिए उनका बीच में? Equal. हाँ, so for uniform electric field, yeah, I can say the lines of force in uniform electric field, the lines of force in uniform electric field are parallel to each other.
each other and separation क्या होगा बच्चा? Equally equal, spaced. क्या होना चाहिए? Equally spaced. Yes. Clear? Any confusion? Yes. No. no, ठीक है, सो फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। बच्चे ये सब टर्म्स याद नहीं आता है तो ये भी लिख सकते हो। लाइंस ऑफ फोर्स, दे मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे मूव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये वर्डिंग भी आप पुट अप कर सकते हो। अदरवाइज दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, दे आर टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। दे टर्मिनेट टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ये भी ठीक है, towards negative charge, and they will never intersect each other. They are always perpendicular to the surface of charge conductor. They will never pass through conductor, but they can pass through insulator. Fifth one, magnitude of electric intensity is proportional to number of electric lines of force per unit area of the surface held perpendicular to the field. Sixth, if they are crowded, electric intensity is maximum, and if they are well separated, electric intensity is minimum. Seventh one, the lines of force in uniform electric field are parallel to each other and equally spaced. Right? Complete कर लो बच्चा। सर एक बार 6th पॉइंट समझाना। कौन सा पॉइंट? 6th पॉइंट वो क्राउडेड वाला। बच्चे अभी यही लाइंस ऑफ फोर्स एकदम नजदीक नजदीक है। अभी मैंने इधर एक प्लेन विजुअलाइज किया जो परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, एंड ये प्लेन में मैंने यूनिट एरिया लिया, यूनिट एरिया। तो लाइंस ऑफ फोर्स कितना पास होगा बच्चे? ज्यादा पास होगा कि कम पास होगा? ज्यादा। तो बात खत्म ना, ज्यादा पास हुआ, नंबर ज्यादा है तो इंटेंसिटी भी क्या रहेगा बच्चा? ज्यादा। वही लिखा है। अभी सेपरेशन ज्यादा है इनका बीच में, तो अल्टीमेटली हम लोग ने प्लेन कंसिडर किया एंड प्लेन में यूनिट एरिया कंसिडर किया, यूनिट एरिया। तो इसमें कितना पास होता है बच्चे? एक ही पास होता है या दो पास होते हैं? इसमें तो 10 पास हो सकता है, तो इधर इंटेंसिटी क्या रहेगा? कम। ओके सर, ओके। Done, sir. Okay. sir 7th point, Seventh point, the lines of force in uniform electric field are parallel. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल होता है और इक्वली स्पेस्ड होता है, ऐसा होता है। तो इनके बीच में डिस्टेंस है ना, सेम होना चाहिए आपस में।
हाँ बोलो बच्चा। हो गया सबका लिख के? Yes, No, sir. sir. ओके, नो सर। अभी भी ब्लर है बच्चा, क्या दिख रहा है? यस ब्लर है सर Blur. ब्लर ब्लर आपका लिख के हो गया? यस सर Yes. अच्छा, हो गया सबका? Yes. Yes. ठीक है, ध्यान दो। अभी सपोज आपने डेफिनेशन लिख लिया कि इट इज द फ्री पाथ फॉलोड बाय यूनिट चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन आप जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उसको प्रॉपर्टीज में लिख सकते हो, राइट? तो ये लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी at any point on electric lines of force is given by tangent drawn to that point in the direction of electric lines of force. In the direction of electric lines of force. Is it clear बच्चा? तो ये 8th प्रॉपर्टी होगा। इन केस आपने डेफिनेशन सेकंड वाला लिखा तो, फर्स्ट वन लिखा तो ऑब्वियसली वो डेफिनेशन में आ गया, ठीक है? तो कितना पॉइंट्स हो गया बच्चा? 8 प्रॉपर्टीज। 8. एट ठीक है, लिख लो, देन वी विल स्टॉप।